साक्षी जी। जी स्टार्ट मेरी करें। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा अच्छा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। I Sakshi Singh, research scholar from Banaras Hindu University, Faculty of Education, and welcome you all in this lecture series organized by Indian Research Scholar Association. And today's topic is a social research, its relevance for the contemporary society. First of all, I would like to thank Mr. Vikas Kumar ji for organizing this wonderful session and coordinating all these sessions successfully. Along with me, there is a Mr. Dhiresh Tiwari ji and Hemant Yadav ji. And Dhiresh Tiwari ji is convener of this session, and Hemant ji is the organizing secretary of this session. And now it's time for our today's lecture speaker, sir. Professor Jagmeet Bawa sir, and sir is the head of Department of Political Science in a Central University of Himachal Pradesh. Now I would like to invite Mr. Devesh ji for brief academic introduction and today's speaker sir and subject introduction. Over to you, Devesh ji. Good morning to all of you, and welcome to this session organized by Indian Research Scholars Association. And I'm thankful to Vikas sir and all of the members who joined this. Today's topic is the social research, its relevance for the contemporary society. And Professor Jagmeet Bawa, uh, our honorable speakers, head of the Department Political Science, Central University of Himachal Pradesh. So, as we know about today's topic, social research, its relevance for the contemporary society. We, Vikas sir, हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है। I request to you, please summarize the topic and uh, introduce it, please. ओके। साक्षी जी। ओके। Uh, Vikas sir, I would like to invite you for the welcome of sir and for beginning of this session. Okay, thank you so much, Sakshi ji. Uh, it's a great privilege for this association because today we have with us Professor Jagmeet Bawa sir, head of the Department Political Science, Central University of Himachal Pradesh, and sir is a eminent scholar of the political science and the field of the international studies.
I would like to welcome on the depth of my heart and the core of my heart to Honorable Professor Jagmeet Baba sir, because sir has accepted our invitation, and sir has said to us that definitely I will deliver lecture, and sir has also chosen very relevant topic for the research scholar, and not only for the research scholar, but that person who taken interest in the research. So I would like to welcome the all participants of this lecture series, and convener of this lecture series, Dhiresh Tiwari ji, research scholar, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. And I would like to welcome co-convener of this lecture series, Sakshi Singh ji, research scholar, faculty of education at Banaras Hindu Vishwavidyalaya, Kashi. And I would like to welcome also to Hemant Yadav ji, research scholar, faculty of education at Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur. So again, I would like to welcome the all participants and all the executive committee members of the Indian Research Scholars Association who has taken their valuable time and joined this lecture series. Uh, and it's also a great opportunity to all of us that Professor Baba sir will be delivered the lecture on the social science research and its relevance in the contemporary society. So, on the behalf of me and on the behalf of the India Research Scholars Association, I would like to welcome again to all of you. Thank you so much. Thank you. So I would like to invite to Sakshi Singh ji for further proceeding. So we will invite you to start the session. So over to you, sir. थैंक यू साक्षी जी, विकास जी, साक्षी जी, और आपके जो इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन है, इसके जितने भी ऑफिस बेयर्स हैं, आपके जितने भी सदस्य हैं, आप सबको बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत देर से विकास जी ने मुझसे कहा था और मैंने काफ़ी डिले कर दिया इस लेक्चर के लिए। बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आई वाज बिट बिजी। Anyway, I'm sorry for the delay, and I hope you will bear with all that. Aaj, the topic which we are going to discuss today is social research and its contemporary relevance for the our society and mankind. At the outset, I would like to make it very clear to all of you that this is really not a core field of mine. मेरा एरिया जो है एक्टिविटी का, मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे काम करता हूँ और उसमें भी इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस को मैं फोकस करता हूँ। बट बीइंग अ रिसर्चर, being a a practitioner of research, being a student of this domain, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, whatever I have gained in the last 2 decades, I will like to share it with you. पहली बात तो ये है कि जो सोशल रिसर्च है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैं सोशल साइंसेस से आता हूं, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग, हो सकता है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि कौन से बैकग्राउंड से हैं, पर मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग सोशल साइंसेस बैकग्राउंड से ही होंगे इस ग्रुप में। तो जो सोशल साइंसेस की रिसर्च है, इसको हम आई एम सॉरी टू से कि थोड़ा सा हमारे देश में थोड़ा सा इसको डाउनग्रेड करके देखा जाता है। थोड़ा सा इसको उस तरह से नहीं देखा जाता जिस तरह से हम जो नेचुरल साइंसेस की रिसर्च के जो रिसर्चर्स हैं, जहाँ उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह से हम उनको लेते हैं, उस तरह से
उस रिस्पेक्ट के साथ उसके लिए थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होगी कि अगर जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसको कुछ लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो उसमें ऐसा क्यों है। पहली बात तो यह है कि जो सोशल साइंसेस की रिसर्च है वो नेचुरल साइंसेस से इंटायरली डिफरेंट है। उनके जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनके बारे में बहुत आसानी से प्रेडिक्शन किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो आमतौर पे उनके ऊपर समय का, उनके ऊपर काल का या उनके ऊपर जियोग्राफी का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जबकि सोशल साइंसेज में जितनी रिसर्च होती है उसका जो आधार होता है, उसका जो केंद्र होता है वो मानव का बिहेवियर होता है, आदमी का बर्ताव होता है, जिसके बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत रिस्की होता है क्योंकि ये पल पल बदलता है। इसके इसके अंदर ये बहुत एक डायनामिक चीज है जो थोड़े थोड़े समय के अंतराल के अंदर चेंज होती रहती है। आप सब अपने अंदर देख सकते हैं इसको। तो जब हम बात करते हैं सोशल साइंसेज के रिसर्च की, मैं आई एम सॉरी टू से वंस अगेन कि मैंने जितना बाहर जाके, जितने यूरोप में, वेस्ट में मैंने जो देखा है उसमें और हमारे देश की सोशल साइंसेज रिसर्च में जमीन आसमान का अंतर है। पहली बार हमारे यहाँ पे हमने GER को पिछले 7-8-10 साल से हमने टारगेट किया कि हम उसको बहुत इंक्रीज करेंगे और हमारे यहाँ रिसर्च का लेवल, एजुकेशन का लेवल, हम सब चीज़ों को पिछले कुछ समय में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। बट हाँ, रिसर्च के अंदर मैं अभी भी मानता हूं कि हम उस लेवल पे नहीं आए हैं जहां पे हमें रिकॉग्नाइज किया जा सके। लिटरेचर में हम अच्छा कर रहे हैं, हमारा देश, नेचुरल साइंसेज में भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं, बट एज फार एज द सोशल साइंसेज इज कंसर्न स्टिल वी आर नॉट अप टू द मार्क। अभी भी हमें लंबी दूरी तय करनी है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी इस बात की है कि जिन लोगों के दम के ऊपर, जिनके सहारे हमने ये दूरी तय करनी है वो आप ही लोग हैं, क्योंकि हमारा जमाना निकल चुका है। अब काम आप लोगों ने करना है। तो मुझे खुशी है कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनसे हमें बहुत उम्मीद है, जिनसे हमें बहुत आशा है कि वो आने वाले समय में हमारे लिए सोशल साइंसेज के जो हम थोड़ा सा पछड़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, उसको भी वो ठीक करने में अपना एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। जैसे ही हम बात करते हैं कि हमारा सोशल साइंस का जो रिसर्च है वो इम्पैक्टफुल क्यों नहीं है, अब मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो रिसर्च है इंडिया में सोशल साइंसेज में हो रही है। रादर मैं आपको कहूँ कि जितनी सोशल साइंसेज में रिसर्च हमारे इंडिया में हो रही है, पूरी वर्ल्ड में किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतनी रिसर्च, जब बड़े बड़े कंट्रीज में इतनी रिसर्च नहीं हो रही है। बट प्रॉब्लम वही है कि जो हमारी रिसर्च है वो सोशली रेलेवेंट कम है। अब ये सोशली रेलेवेंट रिसर्च है क्या? ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसको हम सोशली रेलेवेंट बोलते हैं? तो बस एक मैं छोटा सा, वैसे आप सब लोगों को ध्यान में होगा, मैं थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने के लिए मात्र मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसी रिसर्च जो समाज के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे, जो क्वेश्चन सोसाइटी ने रेज किए हैं उनको हम एड्रेस करें, जहाँ जो सोसाइटी की कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एक रोड मैप हमें दे, उस समस्या से बाहर कैसे आना है उसके बारे में हमें सुझाए। ऐसी रिसर्च को हम सोशली रेलेवेंट रिसर्च बोलते हैं। अभी हमारी बेटी साक्षी ने कहा कि वो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं। अभी किसी सज्जन का और नाम ले गया कि वो JNU से हैं, जहाँ बाकी सब अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप रिसर्च स्कॉलर बैठे हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कभी आप अपने रिसर्च, जो आपका थीसिस सेक्शन है आपकी लाइब्रेरी का, वहां जाके देखें कि कितने थीसिस वहां पड़े हैं और उसमें उनके टॉपिक्स आप देखिए कि लोगों ने किन किन विषयों के ऊपर PhD की है। क्योंकि हम मानते हैं कि यू ऑल पीपल आर फ्रॉम वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस,
BHU का एक अपना नाम है, JNU का अपना नाम है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना नाम है। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे लिए एक बीकन का काम करते हैं, हमारे लिए रास्ता दिखाने का काम करते हैं, और इन्होंने हमारे लिए बहुत सारी यार्डस्टिक्स तय की हुई हैं। बट इशू ये है कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में से जो रिसर्च हो रही है, क्या वो हमारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस कर पा रही है या नहीं। तो आप जब इन जितने भी ये आपके थीसिस के जितने भी टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, टाइटल्स हैं, आप उनको देखेंगे कि रिसर्च, हमें टाइटल से नजर आता है कि किसी व्यक्ति ने रिसर्च किस पर्पस से की है। एक तो हमारे देश में यह है कि जो भी आदमी रिसर्च शुरू करता है वो आदमी की 99% लोग, 98% लोग अपनी रिसर्च पूरी करते हैं, और फॉरेन में ऐसा नहीं होता। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ 20% से ज़्यादा लोग अपनी PhD को, अपने रिसर्च को पूरा नहीं कर पाते हैं। जितने लोग रजिस्टर होते हैं उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है रजिस्टर होने वालों का, वो बीच में छोड़ जाता है किसी न किसी वजह से, बिकॉज उनको लगता है, बड़ा कारण यही है कि उनको लगता है कि दे विल नॉट बी सोसाइटी। उनको लगता नहीं किया स्टूडेंट, आई वाज डूइंग माय PhD, उस टाइम तो गूगल वगैरह नहीं होता था। तो मेरे गाइड ने मुझसे कहा कि जाके जरा ना थोड़ा सा देख के आइए कि किस किस टॉपिक के ऊपर PhD हुई है। तो मैं एक पंजाब की ही एक अच्छी यूनिवर्सिटी में गया, तो वहाँ जाके मैंने उनके थीसिस सेक्शन में गया। मैंने थीसिस के जो भी थीसिस पे काम हुए थे, मैंने उन सब के एक टाइटल की लिस्ट बनानी शुरू की। उसमें एक बहुत ही कमाल की बात ये आई कि एक व्यक्ति ने टाइटल था वर्किंग ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ मलेरकोटला। दूसरे बच्चे का काम था वर्किंग ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ धोरी। तीसरे का वर्किंग ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ समाना। कमाल की बात यह है कि सबकी जो, किसी एक बच्चे ने मलेरकोटला की म्यूनिसिपल कमेटी के ऊपर, काउंसिल के ऊपर काम किया, उसने जो चैप्टराइजेशन बनाई उसका एज इट इज उठा के नाम चेंज करके, डायनामिक्स चेंज करके कि उसकी आबादी इतनी है, इसकी आबादी इतनी है, उसकी इतनी सीटें, उसकी इतनी सीटें, इतनी % आबादी इतनी। अब सब आपने एक ही चीज, बड़ी बात यह है कि आप रिसर्च कर क्यों रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग, या मैं कहूँ लगभग सब लोग के रिसर्च करने का जो पर्पस है वो डिग्री है। मतलब हमारे पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव में से कहीं पे भी ये नहीं आता कि वी आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। हमने सोसाइटी में कहीं ना कहीं कोई डेंट डालना है उसकी प्रॉब्लम में, ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव में भी नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत ही, मैं आपको उदाहरणों से बताने की कोशिश करूंगा ताकि थोड़ा सा समझने में अंडरस्टैंड। मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ। हमारे देश में पॉलिटिकल साइंस की जो लास्ट मौलिक ग्रंथ की रचना हुई, आखिरी मौलिक ग्रंथ जो लिखा गया हमारे देश में पॉलिटिकल साइंस में, वो 10वीं शताब्दी में 10th सेंचुरी में लिखा था। सोमदेव सूरी का है वो, जैसे हम नीति वाक्य अमृत बोलते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी, इट वाज द लास्ट ओरिजिनल टेक्स्ट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन इंडिया बाय एनी इंडियन। 1000 साल हो गया हमारे देश में किसी ने कोई भी पॉलिटिकल साइंस है। अब ये ठीक है, BHU से बेटी साक्षी बैठी है हमारी, बनारस के ही एक हमारे महात्मा हैं, उन्होंने कुछ साल पहले एक किताब लिखी है जिसे हम मानते हैं कि वो राजनीति विज्ञान की मौलिक ग्रंथ है। पूर्णता मौलिक ग्रंथ है। कृपात्री जी महाराज का जो रामराज और मार्क्सवाद की 1000 साल का अंतर है। तो 1000 साल तक हमारी सिविलाइजेशन, जो हम ये दंभ भरते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम विश्व गुरु होंगे आने वाले समय में, 1000 साल तक हम कुछ नहीं कर पाए।
हम लोगों ने सोशल साइंसेस के फील्ड में एक भी मौलिक ग्रंथ कंट्रीब्यूट नहीं किया। हाँ, इन 1000 सालों में मैं बिल्कुल मानता हूं कि उसके जो रीजन है वो बहुत वैलिड थे कि हम कुछ क्यों नहीं कर सके। हम 1000 साल के आसपास गुलाम रहे, हमारी बौद्धिकता के ऊपर चोट हुआ, हमारे पुस्तकालय जलाए गए, हमारे ज्ञान के जो केंद्र हैं उनको नष्ट किया गया, हमारे विद्वानों को टॉर्चर किया गया, उनको उस अवस्था, क्योंकि रिसर्च करने के लिए भी एक अवस्था होती है, उस अवस्था में उनको नहीं रहने दिया गया कि वो कोई ज्ञान की बात कर सके। हाँ, इसके बावजूद भी हमारे कुछ लोगों ने, जैसे यूपी के बहुत सारे लोग बैठे हैं, यूपी के अंदर लगभग 9 के आसपास राजधर्म पिछले 1000 साल में लिखे गए, पर वो राजधर्म बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और रहेगा आने वाले समय में। पर बड़ी बात यह है कि उन सब राजधर्मों को हम मौलिक ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि उनको लिखने वाले सब जितने भी लेखक हैं उन्होंने, उनसे पहले जो ज्ञान मौजूद था हमारे सिस्टम में, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में, उन्होंने उसकी युगानुकूल और समय अनुकूल जो भी व्याख्या वो कर सके, स्थानानुकूल व्याख्या की है, इसके ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए इसी वजह से हम उनको मौलिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। अब बड़ी बात कि हमारी पहली बात तो यह है कि अगर कोई सोशली रेलेवेंट रिसर्च करता है तो उसको अपनी यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च करता है, यूनिवर्सिटी के पीछे एक गांव है, उस गांव में उसको पहुंचने के लिए 20 साल लगते हैं। यूनिवर्सिटी की जो दीवार है, उस दीवार को क्रॉस करने में, उस दीवार को कूदने में, उस हमारी आउटकम को 10, 20, 30 साल लग जाते हैं। नॉट ओनली इन सोशल साइंसेज, इवन इन एग्रीकल्चर और इन नेचुरल साइंसेज आल्सो। जो काम हम लेबोरेटरी में करते हैं उसको हमारे लोगों के पास जाने में बहुत समय लग जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लेबोरेटरी से लोगों के पास जाने से पहले वो अमेरिका, कनाडा, वेस्ट की किसी कंट्री में जाती है, वहां से फिर वो लोगों के लिए एक नई फॉर्म में आती है। उसके बहुत सारी चीजें हैं, उसके एस्पेक्ट हैं, आज उसके बारे में हम नहीं जाना चाहेंगे। फिर मैं वापस फिर सोशल साइंसेज रिसर्च के मुद्दे पे आता हूँ कि जो हमारी रिसर्च है, वाई इट इज नॉट, ये क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। अभी आप गूगल करिए, आप किसी से पूछिए तो लोग 1000 कारण बता देते हैं। सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ फंडिंग नहीं है जी, हमारे यहाँ सरकार पैसा ही नहीं देती है, हमारे यहाँ सिस्टम में पैसा कहाँ है कि लोग रिसर्च कर सके। मीडियोक्रेसिटी, हम मीडियोकर हैं जी, हम ऐसे हैं। मैं मानता हूँ, ठीक है बात है, पर मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। सबसे बड़ी तो हमारी अपनी खुद की ओरिएंटेशन है। अभी हमारी ओरिएंटेशन खुद, मैं बड़ी साफगोई से बात कहूंगा, कोई व्यक्ति मार्क्स से सहमत हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, पर उसका कंट्रीब्यूशन तो है ना जी। कोई राइटिस्ट हो सकता है, वो कहेगा कि मैं मार्क्स की विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, वो भारत के अनुकूल नहीं है, वो इसके अनुकूल नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये है। ठीक है यार, आप बोलिए, पर आप ये नहीं कह सकते कि उसने कुछ रेलेवेंट काम नहीं किया। उसने बहुत ही रेलेवेंट कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दिया है। सोसाइटी का एक बड़ा तबका जिसको उसने हैव नॉट बोला है, उसके लिए उसने आवाज उठाई है। हमारे देश में भी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने हमारे यहाँ अब तो जो लास्ट मैन की बात की है, वो जिस कंसर्न को मार्क्स ने उभारा था, उसी की बात तो वो अंत्योदय की, जिसे हम हिंदी में, मैंने लास्ट मैन कहा, जिसे आप अंत्योदय बोल देते हैं, अंत्योदय का आशय यही है ना कि जो लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा हुआ, अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जब तक सोसाइटी, जब तक इंटेलेक्चुअल्स, जब तक सिस्टम, गवर्नमेंट उनकी चिंता नहीं करती, आपकी सब चीजें बेकार हैं, आपकी चीजों की कोई रेलेवेंस नहीं है। तो मुझे आप ये बताइए कि मार्क्स को कौन सी गवर्नमेंट ने, हमारे अपने बहुत सारे विद्वान लोग हैं जिन लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, तो उनकी रिसर्च को किस गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया? आईसीएसएसआर ने फंडिंग की, आईसीएचआर ने फंडिंग की, आईसीपीआर ने फंडिंग की, किसने फंडिंग की? आप जरा बताइए मुझे। देखिए, रिसर्च ये सब बहाने हैं, जिसे मैं डिफेंस मैकेनिज्म कहूंगा।
रिसर्च में जाने के लिए हमें अपने आप के अंदर क्लैरिटी होना बड़ी बात है कि मैं रिसर्च क्यों कर रहा हूँ। जब तक हम रिसर्च को रिसर्च समझ के नहीं करेंगे, जब तक हम रिसर्च को एक जो मैंने जिस जिस टॉपिक में हम बोल रहे हैं कि इट शुड बी रेलेवेंट टू द सोसाइटी, जब तक इस आशय से जोड़ के हम रिसर्च को नहीं करेंगे, जब हम रिसर्च को डिग्री से जोड़ के करेंगे, तब तक ये सब कुछ होता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे सिस्टम का एक छोटा सा फॉल्ट है जिसे उसे भी मैं उठाऊंगा। आप वेस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको रिसर्चर अलग से मिलेगा, टीचर अलग से मिलेगा। जो टीचर है आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो रिसर्च करे। टीचर का काम सिर्फ इतना है कि जो नई रिसर्च आई है उसको डिसेमिनेट करे, और जो रिसर्चर है उसे आप टीचिंग का रोल नहीं देते हैं। वेस्ट में ऐसा होता है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो टीचर है ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला व्यक्ति है, हम उनसे आशा करते हैं कि वो साल में खूब सारी क्लासेस लेगा, खूब सारी क्लासेस लेगा। उसके बाद वो उसको नैक के आप 5-7 असाइनमेंट नैक की दे के रखेंगे, उसे आप NIRF की असाइनमेंट देंगे, उसे आप डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल भी उससे चलवाएंगे, आप उससे आप एग्जामिनेशन का काम भी करवाएंगे, उससे और जितने काम कुम करवा के बीच में इलेक्शन का काम भी आएगा, कभी लोकसभा विधानसभा, वो भी आप उससे करवाएंगे। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आप उससे कहेंगे कि लेके आओ 2 रिसर्च पेपर, 4 रिसर्च पेपर, कहाँ लिखे हैं? और वो भी कहेंगे कि जी स्कोपस वाला लेके आइए, वेब ऑफ साइंस वाला लेके आइए, इसका इम्पैक्ट फैक्टर थॉमस एंड रूटर्स में कितने हैं वो दिखाइए। तो मेरा ये कहना है कि आप एक ही व्यक्ति से, हम कोई वो दुर्गा माता तो है नहीं कि जिनके 8 हाथ होंगे, ये भी काम कर लिया वो भी कर लिया। तो जो रिसर्चर है ही और शी इज सपोज टू बी अ रिसर्चर, और जो टीचर है ही और शी इज सपोज टू बी अ टीचर। जब तक हम ये ऑलराउंडर एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन, इंग्लिश की कहावत है। जब हम आशा करते हैं कि ये व्यक्ति सारे काम करेगा, तो जब एक व्यक्ति सारे काम करेगा तो वो मास्टर किसी का नहीं होगा। अब जब आप मास्टर किसी के नहीं होंगे, तब फिर आप जो सोशली रेलेवेंट, जिसे वेस्ट ने कहा है द क्रेडो ऑफ रेलेवेंस, उसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको एक और हमारे रिसर्चर्स की एक जो प्रॉब्लम है उसकी ओर मैं उसके बारे में, मोस्टली आजकल आप देखेंगे कि चल क्या रहा है। सोशल साइंसेज में हमारी जो रिसर्च है बेटा, आज की डेट में ये डाटा ओरिएंटेड हो गई है, जो मैंने फील किया है। हमारे पास बहुत सारे थीसिस आते हैं, सिनॉप्सिस आते हैं, जब हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि 75% से ज़्यादा जो आपके थीसिस जो रिसर्च आ रही है, क्योंकि मैं थीसिस की बात इसलिए अभी मैंने उठाई है क्योंकि ज़्यादातर रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हैं जो अपने अपने थीसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए भाइयों कि सब डेटाबेस काम हो गया है, एक सोशल साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक सोशल साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है रिसर्च में टू जनरेट आइडिया। एक सोशल साइंटिस्ट ने तो आइडिया जनरेट करना है ना जी। तो क्या हम आइडिया जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? नहीं, हम नहीं कर पा रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम डाटा लेते हैं, डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम प्री कंडीशनिंग के साथ काम कर रहे हैं। पहले पहले हम तय कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट ये निकलेगा, उसके बाद हम उस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट कर। डाटा का क्या है बेटा, एक डाटा से मैं 10 अलग अलग तरह की इंटरप्रिटेशन दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। एक सेम डाटा के साथ आप उसको कैसे भी इंटरप्रेट कर लीजिए। डाटा क्या होता है, डाटा का रोल है क्या? सोशल साइंसेस में डाटा का जो रोल है, वो जो आइडिया आपने जनरेट किया है, उस आइडिया को स्थापित करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हम डाटा का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर डाटा तो सेकेंडरी हो गया ना भाई।
प्राइमरी तो आइडिया हुआ ना, जिस आइडिया पे हम काम कर रहे हैं, आइडिया प्राइमरी होना चाहिए कि मैं एक नया आइडिया लेके आया हूँ। साक्षी ने कहा, जहाँ शायद धीरेश भाई ने कहा था कि वो एजुकेशन फैकल्टी शिक्षा संकाय से हैं, तो एजुकेशन के अंदर एक खास तरह की जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको प्रॉपरली एजुकेट करने के लिए आप एक नया आइडिया लेके आइए। उस आइडिया को टच करने के लिए आप एम्पिरिकल स्टडी करिए, फिर डाटा के लिए जाइए। आप हम कर क्या रहे हैं, हम डाटा ले रहे हैं और डाटा से आइडिया निकाल रहे हैं। हम बेटा द अदर वे राउंड वी हैव हमने चीजों को उल्टा कर दिया है। आई एम रियली सॉरी। ऐसे अगर हम इस तरह से डाटा बेस्ड रिसर्चेस करते रहेंगे, इतनी ज्यादा, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये आपने एक आइडिया के ऊपर काम करना है तो आपको 50 पेज लिखने थीसिस के मुश्किल पड़ जाएंगे बच्चों। पर जब आपने 200 लोगों से डाटा इकट्ठा कर लिया ना, तो उसके ऊपर 400 पेज आप 10 दिन में लिख सकते हैं। यू नो, मी नो एंड एवरीवन नोस। तो सिर्फ आसान काम करने के पर्पज से, सिर्फ जल्दी काम करने। और एक और बात, मैं थोड़ा सा हैरान हूं इस बात पे, जो लोग डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं वो भी कितना टाइम लगा रहे हैं पीएचडी पूरी करने में, 4 साल 5 साल। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, मैं भी इसी फील्ड में हूं, आप भी इसी फील्ड में है। शायद आप तो सिर्फ खुद पीएचडी कर रहे हो, मैंने खुद भी पीएचडी की है, उसके बाद बहुत सारी मैंने लोगों को पीएचडी करवाई है और करके देखा है कि अगर आप डेटाबेस पे काम करते हैं, ईमानदारी से काम करें, 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम 6 महीने में तो पीएचडी कर सकते हैं ना, थीसिस लिख सकते हैं। ऐसा काम करने में भी हम 4 साल से 5 साल का समय ले रहे हैं। वाई? तो सब इसका मतलब ये हुआ कि हमने रिसर्च को प्रायोरिटी में नहीं रखा हुआ है। रिसर्च हमारा एक, अगर समय कभी मिल गया तो कर लेंगे। अभी मैं तो अपने बच्चों से मजाक में कभी बात करता हूँ कि हमारे पास भी रिसर्च स्कॉलर्स है, मेरे पास भी 7-8 बच्चे हैं। तो वो करते क्या है कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब अच्छे होते हैं, सबका ओरिएंटेशन एक जैसा नहीं होता। कोई कम वाला, कोई ज़्यादा वाला, कोई इस फील्ड में ज़्यादा तेज होता कि उस फील्ड में। मैं आई एम सॉरी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, ध्यान केंद्रित फोकस करने की बात है कि हम लोग देखते हैं कि बच्चे सब तरह के काम करते हैं और अगर उन कामों में से समय बच जाए तो फिर वो पीएचडी की तरफ जाते हैं। कितने साथी हैं हमारे। मैं जब भी मेरे पास कोई अपना रिसर्च पेपर लेके आता है, कोई थीसिस कुछ भी देता है, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि मेरे पास तो एक ही यार्डस्टिक है आपको काम को चेक करने की, मैं तो एसएलआर करूंगा। जहां आप मुझे दिखा दीजिए आपने कौन सा एसएलआर किया, मुझे दिखा दीजिए आपने कितना, कौन सा एसएलआर किया है, क्या किया है, उस एसएलआर की आउटपुट मुझे दे दीजिए और उस एसएलआर का जो डाटा है वो आपके थीसिस के साथ कैसे सिंक होता है मुझे दिखा दीजिए। बस इतना ही बहुत है। मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा मुझे समझने में, या क्योंकि जब तक आपने प्रॉपर रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं किया है, जब तक उस रिव्यू का अच्छे से आपने रिसर्च गैप ही नहीं निकाला है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी मैंने एक रेलेवेंट टॉपिक पे काम किया है, मैं ऐसे टॉपिक पे काम करने जा रहा हूं जो सोसाइटी के लिए रेलेवेंट है। मुझे नहीं पता यहाँ बैठे लोगों में से कितने लोग जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हूँ, क्योंकि मेरा एरिया जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। मैं पॉलिटिकल साइंस के माध्यम के जो इस फील्ड के जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा रेलेवेंट एग्जाम्पल के साथ बात कर सकता हूँ। आप मुझे बताइए कि आज की डेट में पिछले 10 साल में पूरी वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी को लेके एक बड़ी बहस चली हुई है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ठीक है, जैसे कि हैटिंगटन बोलता है, जब बाकी लोग बोलते हैं, तो फ्रीडम हाउस जैसे जो बड़े बड़े अदारे हैं उन्होंने भारतीय डेमोक्रेसी को चैलेंज कर दिया है। मैं
मैं आपसे शायद पता नहीं, मैंने पहले ही कहा कि कितने बच्चे पॉलिटिकल साइंस के हैं, कि भारतीय डेमोक्रेसी को लोगों ने उसका कंपैरिजन कर रहे हैं सीरिया। अभी अभी एक रिसेंटली द जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी है, एक अमेरिका से छपता है, उसने भारतीय डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के ऊपर एक स्पेशल इशू निकाला है लास्ट ईयर, और उन्होंने लगभग 15 आर्टिकल इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर छापे हैं, और जिसका कंपैरिजन वो कर रहे हैं सीरिया के साथ, इराक के साथ, और दुनिया के बिल्कुल ऐसे स्थानों के साथ जहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम एक तरफ बात करते हैं कि 140 करोड़ लोगों का देश, दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग डेमोक्रेसी, उसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। और डेमोक्रेसी को थियोरेटिकल, इंडियन डेमोक्रेसी को थियोरेटिकल एस्पेक्ट से टच को चैलेंज किया जा रहा है, और कहा जा रहा है, एक हमारी बहन है अमेरिका से, उसने कहा कि भारत में कभी भी डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, नेवर, उसने कहा है, उसने चैलेंज किया है। तो मैं दूसरी तरफ मैं ये कहता हूं कि हमारे देश के राजनीति विज्ञान के छात्र कर क्या रहे हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि भगवान राम के समय से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और दूसरी तरफ लोग हमें ये चैलेंज कर रहे हैं कि ना तो आपके यहाँ आज डेमोक्रेसी है, ना आपके यहाँ कभी आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि आपकी जो सोसाइटी की नेचर है, इसमें डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह ही नहीं है। उनका कहना है कि कोई भी पार्टी की सरकार आए या जाए, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो मैं इस बात से हैरान हूं। मैं तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ युगांतर से लोकतंत्र चला आ रहा है। भाई, हम एक बहुत क्लास में आमतौर पे मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ कि जी, जब भगवान राम को वनवास का ऑर्डर हुआ दशरथ जी के द्वारा, तो उससे पहले जब ये चल रहा था कि उनका राज तिलक होना था, तो माता कैकेयी जो थे वो कोप भवन में चले गए थे। आप सबको पता होगा इस बारे में। जिस तो कोप भवन में वो अपने बाल खोल के कोप भवन में चले गए। दशरथ जी अपने महल में आए, उन्होंने पूछा कि वो कैकेयी कहाँ है, तो किसी ने बताया कि वो तो कोप भवन में चली गई। दशरथ जी उनको मनाने के लिए गए और कहा कि भाई ये क्या हाल बना रखा है आप, ये तो ठीक बात नहीं है। तो उन्होंने अपना गुस्सा होने की वजह बताई, और उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पे आपके साथ रिकनसाइल करूंगी, अगर आप राम की जगह भारत का राज तिलक करेंगे और उसको अगला राजा बनाएंगे, अदरवाइज मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ऐसा सुनते ही दशरथ महाराज ने उनसे कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। राजा कौन होगा, अगला राजकुमार कौन होगा, ये मैंने तय नहीं करना, ये सामंत तय करते हैं। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द फ्यूड्स। तो व्हाट इज दिस बेटा, ये है क्या भाई, इससे बड़ा लोकतंत्र क्या होगा। ऐसी और हजारों चीजें हैं। जहां जिस देश में लोकतंत्र इतना पुराना चला आ रहा है, वहां के लोकतंत्र के ऊपर इतने बड़े बड़े आघात होते हैं, और हमारे देश का कोई भी व्यक्ति इस टॉपिक, हमारे जो ये आजकल के बच्चे हैं उनमें से कोई भी बच्चा डेमोक्रेटी के थियोरेटिकल एस्पेक्ट को टच करने की बात नहीं कर रहा, डेमोक्रेसी के इंडियन एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने की बात नहीं कर रहा, डेमोक्रेसी का जो इंडियन फॉर्म है उसको दुनिया के पटल पे सामने रखने का प्रयास नहीं कर रहा, तो आपकी सोशली रेलेवेंट रिसर्च कैसे हो सकती है। आपके ऊपर दुनिया चैलेंज थ्रो कर रही है, और यू आर नॉट टेकिंग दैट चैलेंज। ऐसे ही चैलेंज एजुकेशन में भी होंगे, ऐसे ही चैलेंज इकोनॉमिक्स में भी होंगे, ऐसे ही चैलेंज हिस्ट्री में भी होंगे। हमारी लड़ाई बेटा, जो सोशल साइंसेज वाले लोग होते हैं, हमारी लड़ाई नैरेटिव्स की होती है। जो हमारे विरोधी हैं वो हमारे खिलाफ नैरेटिव सेट करेंगे। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उन विरोधियों के नैरेटिव्स को काउंटर करें और अपना एक नया नैरेटिव स्थापित करें। कम से कम डिप्लोमेसी के फील्ड में हमें हमारे जो मौजूदा
विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यही सिखाया है, टू बी ऑफेंसिव। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम विदेश की, हम वेस्ट की नोशंस को सेकंड कर रहे हैं। उनके क्या कर रहे हैं, किसी ने विचार वेस्ट में दिया, हम विचार पे काम नहीं कर रहे हैं, उसके दिए हुए विचार को भारतीय पृष्ठभूमि में चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो विचार उन्होंने वहां दिया हम यहाँ। मैंने अभी भी शुरू में कहा कि वर्किंग ऑफ फलाना म्युनिसिपल काउंसिल कब तक चलेगा बेटा ये? हाउ विल इट कंट्रीब्यूट? कैसे इसी प्रांत, जिस प्रांत में आप लोग बैठ के इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसकी एक यूनिवर्सिटी का एक दिन मास वाइवा लेने गए। 21 वाइवा थे एक दिन में, 21 मतलब 2-3 दिन चला, 21 एक गो में 21 वाइवा थे। आप यकीन करिएगा 18 लोगों ने एक ही टॉपिक पे काम किया हुआ था। 18, ये पिछले साल की बात है। मेरे साथ मेरी अपनी यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्च स्कॉलर थे और हम लोग हंस रहे थे। और वो किस टॉपिक पे काम कर रहे थे सारे के सारे बच्चे? आप समझ सकते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। उसने ये जिला पकड़ लिया, भगवान की दया से जिले बहुत हैं, डिस्ट्रिक्ट्स बहुत हैं यहाँ पे। एक ने वो खंड पकड़ लिया, एक ने वो खंड पकड़ लिया। ऐसे कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ऐसे नहीं होने वाला कुछ। अगर आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के किसी मॉडल को स्थापित ही, अब मॉडल तो लेके आइए ना, कम से कम पोपटराव पवार का जो मॉडल है महाराष्ट्र वाला, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके मॉडल को ही स्थापित कर लीजिए कम से कम। ट्रू डेमोक्रेसी का जो मॉडल लेके आया है, और सरकार आज की डेट में हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है, हमें उसे समझना होगा, हमें उसे एड्रेस करना होगा, और हमें इस शैल से महीने में, 1 साल में, बिना किसी बड़े एफर्ट से मैं पीएचडी खत्म कर लूंगा, उससे हमें बाहर आना होगा। ठीक है, बाकी मैं, चलो ठीक है, बाकी सब इस शैल से बाहर नहीं आ सकते, पर मेरी प्रार्थना उन लोगों से है जिनको हमारी सरकार हर साल, जो JRF SRF है, आप लोगों को सरकार बहुत सारा टैक्स पेयर का बहुत ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा आपको दे रही है भाई, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि उसकी वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए कि नहीं? एक गरीब आदमी रोड के ऊपर बैठ के अपने बच्चों को नहीं पढ़ा मिलती है, पैसा मिलता है, और मुझे बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। आपकी, शायद आपकी एसोसिएशन की भी ये डिमांड हो, मुझे नहीं पता, कि ये जो स्कॉलरशिप है वो कम है, ये ज्यादा होनी चाहिए, JRF SRF। पर मैं कहता हूँ ठीक है, ज्यादा हो जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये पर्याप्त नहीं है तो उसको बढ़ा देना चाहिए। पर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जितनी मिल रही है, क्या उसके साथ न्याय हो रहा है? उसकी ICSSR की 2009-10 की आसपास की रिपोर्ट है, वो बोले 0 आउटपुट है जी, हमारी 0 आउटपुट है। अशोक राय की कमेटी बनी थी UGC की, उसने कहा है कि जितनी रिसर्च फंडिंग हम दे रहे हैं उनमें से 99% सिर्फ एक छलावा है। कोई अशोक राय की कमेटी ने कहा है ये। अगर ये 10% वेस्टेज हो, 20% वेस्टेज हो, 25 हो, 30 हो, माना जा सकता है। अगर 90% से ज्यादा वेस्टेज में कंसिडर हो रहा है तो भाई
फिर ये चिंता की बात है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जिन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती उनको क्षमा किया जा सकता है, उनको माफ किया जा सकता है, पर जिन लोगों को 30, 40, 50 हजार रुपया महीना मिल रहा है उनको तो उनसे ये आशा होनी चाहिए कि वो बिल्कुल फोकस होके बाकी चीजों से ध्यान हटा के एक ऐसे विषय पे काम करें जिससे सोसाइटी को कोई फायदा होना हो, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को कोई फायदा हो। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये आपको दुखद हो सकती है आपके लिए, आने वाले समय में स्कॉलरशिप का नंबर कम हो सकता है बेटा। ये क्योंकि सरकार अपने तरीके से सोचती है, उनको लगता है कि आउटपुट क्या है ना जी। ये पब्लिक एड के शायद कोई बच्चे बैठे होंगे, तो उसमें हम परफॉर्मेंस बजटिंग की बात करते हैं कि बजट को परफॉर्मेंस के साथ जोड़ना, पैसे को परफॉर्मेंस के साथ जोड़ना कि आपकी आउटपुट क्या है उसके साथ जोड़ना। अगर हम आउटपुट की ऐसे ही चलते रहेंगे तो हमारी रिसर्च की जो फिर फंडिंग है उसके ऊपर भी सवाल उठेगा, उसके ऊपर भी कैंची चल सकती है, चली भी है पिछले कुछ सालों में कैंची, और भी चल सकती है। कम से कम रिसर्च फंडिंग को लेके तो ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेके तो बड़ी कैंची चली हुई है, और भी चलने के आसार हैं अगर हम लोग वक्त रहते ना संभले। तो मैं मतलब कंक्लूड करने के लिए आप सबसे ये कहूंगा कि मित्रों, टॉपिक चुनने के लिए बहुत अच्छे से रिव्यू करिए, आप बहुत ही बढ़िया रिव्यू करिए, और फिर अच्छे से रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करिए, और रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करके ऐसे टॉपिक को चूज करिए जो आप जिससे सोसाइटी के लोगों को लगे कि ये आदमी हमारे लिए कुछ कर रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत ट्राइबल्स लोग हैं, हमारे यहाँ तो बहुत डाउन ट्रॉडन लोग हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी प्रोग्राम हो सकता है, उसके लिए इफेक्टिव पॉलिसी क्या हो सकती है। अभी तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंज हैं हर फील्ड में, एजुकेशन हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो। तो आप सबसे निवेदन यही है कि कम से कम ऐसे फील्ड चूज करें हम लोग जिससे मतलब सामने वाले को सुन, कई बार ऐसा होता है कि हम थीसिस लिख लेते हैं, डिग्री भी ले लेते हैं, उसके बाद बेटा सारी उम्र अपना थीसिस छुपा के रखते हैं, अलमारी में ताला लगा के चाबी अपने पास रखते हैं। ऐसा क्यों है बेटा? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक अभी मैं आपको एक करंट एग्जांपल देता हूँ। एक सज्जन, मेरे आस पड़ोस में एक सज्जन का दूसरे सज्जन से झगड़ा हुआ, तो सज्जन, मैंने पूछा भी उस सज्जन से आपका क्या दिक्कत हुई? बोले भाई इसने मेरे रिसर्च पेपर की फोटो खींच ली, फोटो खींच के सबको दिखा दी कि इसने ये रिसर्च पेपर लिखा है। तो भाई जो रिसर्च पेपर इट इज मेंट फॉर एवरीवन, इसमें दिखाना बुरी बात क्या है? हम तो उसकी तो विजिबिलिटी पूरी दुनिया में होनी चाहिए। तो ऐसा रिसर्च पेपर क्यों लिखा जो आपको छुपाना पड़ा, जिसको आपको ताला लगा के रखना पड़ा? आपका रिसर्च पेपर ऐसा हो जिसको आप जगह जगह आप अपने फेसबुक पे डालें कि ये देखो मैंने एक पेपर लिखा है, आप उसे दिखा सके ना दुनिया को। तो यही सबसे बड़ा इसका लिटमस टेस्ट यही है कि आपको अपनी रिसर्च छुपानी ना पड़े। कोई बड़ा आदमी आपके डिपार्टमेंट में आए, कोई विद्वान आपके डिपार्टमेंट में आए, उस विद्वान को आप वो दिखाएं कि जी मैंने एक पेपर लिखा था, ये देखिए आप जरा, इसमें मुझे अपनी फीडबैक दीजिए, अपने इनपुट्स दीजिए। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर आपसे मैं एग्री ना करूं, हमारे यहाँ आजकल एक बहस चल रही है कि कहाँ छपवाना है पेपर। कुछ लोग बोलते हैं कि पीयर रिव्यूड में छपवाओ, कुछ लोग बोलते हैं कि यूजीसी केयर लिस्ट में छपवाओ, और कुछ ऐसे भी दुष्ट लोग हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ स्कोपस में या वेब ऑफ साइंस में छपवाओ, जिनमें मैं भी शामिल हूं। तो भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम विद स्कोपस? जो लोग सही काम नहीं करते वो स्कोपस के खिलाफ किताबें लिख रहे हैं कि ये वो तो गलत है। आपको मैं सही बात बताऊं कि स्कोपस इसलिए बुरा है क्योंकि वो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता। अगर आपका पेपर 99% है वो नहीं छापेगा, और जो हमारे पीयर रिव्यूड है वो अगर आपका पेपर 0.1% है तब भी छाप देगा। 2 पेज के 3 पेज के रिसर्च पेपर छप रहे हैं, आपको पता है, और उसमें कुछ नहीं है, मेरा मित्र का लेख लिखा हुआ भी छाप देते हैं वो लोग।
पीयर रिव्यूड वाले आप, ठीक है जी। स्कोपस वाले, अगर एक वर्ड की गलती पूरे पेपर में हुई, एक जगह आपने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर दी, एक जगह साबित हो गया कि जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं वो पहले भी कोई किसी व्यक्ति ने उस बारे में कुछ बोला है, वो आपको नहीं छापेंगे। 10 बार, 15 बार, 20 बार आपसे रिव्यू करवाएंगे, आपको वो आपसे कहेंगे इसे अपडेट करिए, आपकी क्वालिटी इनहांस कराएंगे। क्यों? क्योंकि जिस जर्नल ने आपका पेपर छापना है उसको इस बात की चिंता है कि अगर इस पेपर की क्वालिटी कम पड़ गई तो अगले इशू आने तक मेरा जो ये वाला अंक मैं छाप रहा हूं इसकी साइटेशन कम हो जाएगी। साइटेशन कम हुई तो ये अगर आप Q2 में है तो Q3 में चला जाएगा, Q3 में है तो Q4 में चला जाएगा, अगर Q4 में है तो डर है कि Q4 से भी बाहर निकल जाएगा। उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, उनको मिनिमम उन्होंने एक फिक्स कर रखा है कि एक आर्टिकल से हमें कितने साइटेशन चाहिए। मैं आपसे कहता हूं जीवन में 5 पेपर लिखो, ऐसे लिखो जिसके 10-10, 15-15, 20-20 साइटेशन हो, बजाय इसके कि 40 पेपर लिखो, 60 पेपर लिखो, 70 पेपर लिखो और आपकी पूरी साइटेशन 10 भी ना हो। आपकी रिसर्च की वैल्यू साइटेशन से है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर साइटिंग यू, कितने लोग आपको साइट कर रहे हैं, उसमें आपकी वैल्यू है। आने वाले समय में जो यार्ड स्टिक होगा मेरे बेटे वो एच इंडेक्स होगा। 2 साल 3 साल से ज्यादा ये नहीं चलने वाला प्रेजेंट सिस्टम, 2-3 साल के अंदर अंदर नया सिस्टम आ जाएगा। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा ये सर्टिफिकेट दिखाओ, वो सर्टिफिकेट दिखाओ, आपसे एक ही बात की जाएगी, जरा आप एच इंडेक्स का प्रिंट आउट दे दीजिए हमें अपना, बस इतना ही। मैं तो अभी भी बोलता हूं किसी यूनिवर्सिटी में नैक कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप यूनिवर्सिटी के सभी टीचर का एच इंडेक्स देख लीजिए, डिपार्टमेंट का एच इंडेक्स देख लीजिए, इंस्टीट्यूशन का एच इंडेक्स देख लीजिए, बात खत्म है। आपको इतने ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है, झमेले सब है। तो अच्छे जर्नल में छपवाइए, और जब अच्छे जर्नल में भी पेपर ही छपते हैं, आप एक पेपर भेजेंगे उसमें वो 10 गलतियां निकाल के आपको भेज देंगे, तो आपको पता तो लगेगा आप गलती क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप ऐसे जर्नल में भेजें जो आपकी गलती ना निकाले। जो भी आपने गलत ठीक लिखा 2000 रुपये ले, 1500 ले, 5000 ले छाप दे, उससे अच्छा ये है कि ऐसे जर्नल को भेजें जो आपको 10 बार बताए कि आपने ये गलत किया, आपने ये वर्ड गलत लिखा, ये वर्ड गलत लिखा, ये लाइन गलत लिखी है, इसमें मीनिंग गलत है, इसमें आपकी ओरिएंटेशन गलत है। ऐसा जर्नल ढूंढिए जो आपको सिखाए। So that's all from me. I hope I have done the justice with the topic. और कुछ मैंने ऐसा कहा वो जो अन्य था उसके लिए क्षमा प्रार्थी। No, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. And I want to introduce to all of you with Papi Haldar ji. And Jagmeet sir, Papi Haldar she is from the Bangladesh, sir, and she has joined our association, and she is a very active member of this association, sir. And so further, so I want to invite to Sakshi Singh, and before this, I want to invite to Dhiresh ji for the concluding remarks. Dhiresh ji, are you present here? Thank you, Vikas ji. Yes, yes. Yes. Thank you all of you, and I'm very thankful to Jagmeet sir present here the many variation of the research and what is the importance of research in present days. सोशल साइंस में कैसे इंडिया के बाहर रिसर्च हो रहे हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और अपने यहाँ पे कैसे मतलब रिसर्च के नाम पर पीएचडी की थीसिस धूल खा रही है कमरों पे, और कुछ भी हम कर रहे हैं। मैं एक हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि लिटरेचर में और सोशल साइंसेज में जो सर ने कहा कि कैसे रिसर्च हो रही है, बात आज के दौर में बहुत
इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम केवल JRF लेने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, सच में रिसर्च कर रहे हैं। एंड the job crisis in academics is also responsible for this. I hope this. तो ये बहुत अच्छा एक व्याख्यान रहा, और इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जो ऐसे व्याख्यान आयोजित कराता है, और इससे हम जैसे रिसर्च स्कॉलर्स को एक नई दिशा और दशा मिलती है कि हम रिसर्च के क्षेत्र में कुछ अच्छा करें। केवल डाटा कलेक्ट करके दे देना रिसर्च नहीं है, कुछ एक नया आइडिया हो और उस इनोवेटिव आइडिया पे हम काम करें। सर ने इन सभी टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से बात की। एंड रिसेंटली अभी हमने भी एक कार्यक्रम आयोजित किया प्रोफेसर मैनेजर पांडे की स्मृति में नवंबर में। उसमें देश के एक जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर मणिन्द्रनाथ ठाकुर को इनवाइट किया था। उन्होंने भी ऐसे टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से चर्चा की। तो मैं फिर से एक बार विकास जी को, साक्षी जी को और जितने कोऑर्डिनेटर्स और पार्टिसिपेंट्स हैं, जगमीत सर को एक बार मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट साक्षी जी फॉर फर्दर। थैंक यू दिनेश जी। और सर ने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम लोग को बताई, जैसे कि हम लोग जब भी PhD में एडमिशन लेते हैं तो इनिशियली हम लोग बहुत डेस्परेट रहते हैं कि हमें कुछ नया इनोवेटिव करना है, कुछ नया फाइंड आउट करना है, बट वो धीरे धीरे कहीं पे डिग्री ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड से वो डिग्री ओरिएंटेड मूव हो करके चला जाता है। तो हमें वो जो अपना इनिशियल पैशन होता है रिसर्च को लेकर के, वो हमें मेंटेन करना है। सर ने आज बहुत अच्छे से हम लोग को मोटिवेट किया कि हमें किस तरह से डिग्री ओरिएंटेड ना हो करके रिसर्च और कुछ न्यू ओरिएंट, मतलब कुछ नया हमें इनोवेटिव फाइंड आउट करना है अपने अपने फील्ड में। या जब हम अपना टॉपिक डिसाइड कर रहे होते हैं तो हमें अपने टॉपिक को डिसाइड करते समय हमें ये पता चल जाता है कि कितना इन फ्यूचर वो कितना रेलिवेंट होगा हमारे सोसाइटी के लिए। तो जब भी हम अपना टॉपिक डिसाइड करें तो हम उसी समय ये देख लें कि हमें क्या ये हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं हमारा टॉपिक। तो थैंक यू सर, बहुत हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिली। अभी कुछ लोग होंगे जिनके टॉपिक डिसाइड हो गए होंगे, कुछ होंगे जो रिव्यू कर रहे होंगे, रिसर्च गैप फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो जो अभी रिव्यू कर रहे होंगे, रिसर्च गैप फाइंड आउट कर रहे होंगे, उनके लिए तो बहुत मोटिवेशन है कि वो ऐसा ही टॉपिक फाइंड आउट करें जो कि इन फ्यूचर जब वो अपनी थीसिस सबमिट करें तो वो सोशली कंट्रीब्यूटेड हो। थैंक यू सर। तो नाउ मैं आप सभी सेशन ओपन करिए। हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर के लिए। हाँ, मैं सभी पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी का कोई क्वेरी हो तो आप सर से पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार सर, मेरा नाम गणेशी लाल है और मैं भारतीय भाषा केंद्र JNU से शोध कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे थे कि आज के समय में रिसर्च का जो गुणवत्ता है शोध की, वो बहुत कम होती जा रही है। स्टूडेंट JRF से रहे हैं और शोध की तरफ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, या कहें कि डाटा कलेक्ट करके डिग्री के लिए रिसर्च कर ले रहे हैं, लेकिन कोई नया दृष्टिकोण और वो सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। ये चीज़ तो देखी जा रही, लेकिन ये क्यों हो रहा है? इस पर क्या सर लगता है आपको कि सिस्टम काफ़ी मायने में इसमें जिम्मेदार है? सिस्टम तो जिम्मेवार, खैर सिस्टम की जिम्मेवारी है, पर सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी जो मैं मानता हूँ वो हमारे जैसे लोगों की, टीचर्स की है। मेरे ख्याल से बच्चा वही काम करता है जिसके लिए टीचर जो कहे वो। अगर मैं अपने बच्चे को कहूँ कि भी चलो चलता फिरता काम करो, तो बच्चा उस पर भी एग्री कर जाएगा। अगर मैं उसे मजबूर करूँ कि भी अच्छा काम करना है तुम्हें, तो फिर जब मैंने बच्चे से अच्छा काम करवाना है तो मुझे भी बहुत बड़ा इनपुट देना पड़ेगा, मुझे भी बहुत सारी एफर्ट मुझे भी लगानी पड़ेगी एज अ टीचर। तो सबसे पहला फेल्यूर जो मैं मानता हूँ हम टीचर्स में है कि वी आर नॉट एबल टू मोटिवेट, वी आर नॉट एबल टू इंस्पायर आवर स्टूडेंट्स। सबसे पहली गलती हमारी है। मैं बाकी टीचरों की बात
सब बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट कर भी रहे हैं, पर एक लेवल तक, है ना, मैं इसे जनरलाइज नहीं करूंगा, कि एक लेवल तक टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को बहुत अच्छा बच्चों को मोटिवेट करे और शुरू से उनको कहे कि क्वालिटी रिसर्च की बात करें। जैसे मेरे पास जो भी बच्चा आता है वो आते ही बोलता है कि सर मैंने पेपर छपवाना है, तुरंत 4 महीने 6 महीने में तैयारी कर लेता है। तो मैं उसके लिए कंपलसरी कर देता हूँ कि छपवाओ, बिल्कुल छपवाओ, पर कम से कम स्कोपस में होना चाहिए, कम से कम स्कोपस में। तो फिर बच्चे को उस लेवल का एफर्ट मारना पड़ता है, जब फिर मुझे भी उस लेवल की इनपुट देनी पड़ेगी। तो जिससे ये होता है कि जब हम बच्चे की बारी इस लेवल पे सेट कर दे कि वो बच्चे को कुछ ना कुछ अच्छा एफर्ट देना पड़ेगा, तो फिर बच्चा करता है ना। आज हमारे यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में मान लीजिए पासिंग मार्क्स 35% है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 35% ही लेते हैं, उनको पता है पास ही होना है। कल को मैं उनकी ही पासिंग मार्क्स 50% कर दूं तो वही बच्चे जो 35 ले रहे हैं वो 50 ले लेंगे पक्का, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बच्चे, उन्होंने बस एक जितना मिनिमम रिक्वायर्ड होता है उतना ही करना होता है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो एक तो प्रॉब्लम ये है, दूसरा ये है कि थोड़ा सिस्टम का फॉल्ट है। आज मान लीजिए मैं एक बहुत अच्छी रिसर्च कर लूं, मैं आपकी जगह आके सोचूं, मैं बहुत अच्छा रिसर्चर बन जाता हूँ, मैं बहुत बढ़िया पेपर लिखता हूँ, तो व्हाट अबाउट माय करियर? मेरा करियर है क्या, है ना? चिंता तो मुझे फिर वही रहेगी कि पहले भाई किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में छोटी मोटी जॉब मिल जाए। तो ये एक चिंता भी बहुत बड़ी बात है। मुझे जितना 5-4 साल विदेश में रहने का अनुभव है, वहां पे बिना शक अच्छी रिसर्च हो रही है, बट वहां पे ये बात भी है कि रिसर्चर को अपने जीवन की करियर की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। उसे पता है कि उसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जिससे वो आपका अपने जीवन का गुजारा तो कर लेगा। हमारे यहाँ ये जिसे गणेशी भाई ने सिस्टम का फॉल्ट कहा है, मैं इस कैटेगरी वाले फॉल्ट को उसी श्रेणी में रखूंगा कि सिस्टम आपको, मैंने अभी अभी जेआरएफ की बात की, जेआरएफ आपको कौन सा सारी उम्र मिलने वाला है भाई? वो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए है। चलो मान लीजिए बच्चे ने 5 साल मिला, 5 साल अच्छा एफर्ट मारा, उसके बाद अब जेएनयू से ही मुझे लगता है बहुत हजारों बच्चे हर साल निकलते होंगे डिग्री लेके, कितनों को जॉब मिल जाती है। और जबकि मैं तो ये मानता हूँ कम से कम कि जेएनयू में अभी भी अगर सब में नहीं तो ज्यादातर केसेस में क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक लेवल तक तो वहाँ क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। क्या हम वहाँ सबको जॉब अश्योर कर पा रहे हैं, करियर की अश्योरिटी दे पा रहे हैं? बस एक बात सर और कहना चाहूंगा यही कि जो सिस्टम की बात है, जेएनयू इसके लिए जाना जाता है जैसे आपने भी कहा, और यहाँ पे मैं लगभग व्यक्तिगत तौर पे कम से कम 50 सीनियर्स को जानता हूँ अपने, जो इतनी अच्छी रिसर्च किए हैं कि उस सब्जेक्ट में पूरे देश भर में उनसे बेहतर कोई नहीं होगा, लेकिन वो घूम रहे हैं नौकरी के लिए और उनको कहीं नौकरी का कोई आसार नहीं मिल रहा है। अंत में वो क्या करने, जीविका के लिए क्या करेंगे, कई बार फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हम लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या करेंगे पता नहीं आगे। दूसरी चीज, पीएचडी जो सिलेक्शन होता है सर, मैंने 2021 में 8 से 9 विश्वविद्यालयों के इंटरव्यू व्यक्तिगत तौर पे दिया था। मेरे साथी जानते हैं, धीरेश है यहाँ पे, विकास जी है। मैं एक ऐसे विषय पे रिसर्च कर रहा था जिसपे होता ही नहीं है रिसर्च, लेकिन बहुत जरूरी है। लोग मुझे बधाई देते थे इंटरव्यू में कि आपको होना चाहिए, लेकिन नहीं होता था। उसके बाद फिर यहाँ हुआ मेरा, लेकिन एक चिंता ये बराबर बनी रहती है कि जेआरएफ के बाद फिर क्या? आप अच्छा रिसर्च, बहुत अच्छा रिसर्च कर लीजिए, लेकिन उसके बाद क्या? इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा गणेशी भाई, हमें अपने ओर से, हमने जब करना ही है तो हमें बेस्ट देना चाहिए। वो तो जो जॉब की चिंता है वो तो उसके लिए भी है, जो अच्छा काम नहीं करता, जो अच्छा करता है, दोनों के लिए है। पर मैं आपसे फिर भी ये बात कहूंगा कि एज अ टीचर मैं आपसे ये कहूंगा कि आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। आपने 50 कहा, आपने कहा कि 50 ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको अच्छा काम करने की बावजूद भी अच्छी जॉब नहीं मिली है, जन जॉब ही नहीं मिली है। तो मुझे लगता है मैं 50 से 1000, मैं 100-200 लोगों को जानता हूँगा, दोज हु हैव डन वेल एंड स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग, है ना जी। मेरे अपनी डिपार्टमेंट में यहाँ हमारे इंटरव्यू हुआ था 2019 में,
तो 200 से ज्यादा लोग जेएनयू के ही थे जो पीएचडी देने, 150 से ज्यादा बच्चे थे जो पीएचडी करके आए थे, इंटरव्यू देने आए थे। मुझे पता है आपकी चिंता वाजिब है, पर मैं फिर भी ये कहूंगा कि आज की डेट में बहुत सारे नए एवेन्यू खुले हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस में अगर कोई बच्चा आज अच्छी रिसर्च करता है, उसकी रिसर्च क्वालिटेटिव है, तो वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसको जॉब तो मिलेगी, टीचिंग की नहीं मिलेगी, किसी थिंक टैंक में मिल जाएगी। हाँ, वो उसके लिए जॉब होगी, जीवन चलेगा, रिस्पेक्टेड नहीं हो सकती। जो एक रिस्पेक्टेबल जॉब की हम बात करते हैं, हो सकता है वो वैसी ना हो, पर हाँ उस बच्चे से उसको मौका मिल जाएगा जिस बच्चे ने चलती फिरती रिसर्च की है, उसके कंपैरिजन में उसे ठीक ठाक किसी थिंक टैंक में, क्योंकि उसने काम किया है, उसे काम करना आता है, तो इस वजह से उसे थोड़ी सी किसी ठीक ठाक किसी प्लेटफॉर्म पे जॉब मिल सकती है। आप तो दिल्ली में हैं गणेशी जी, मुझे लिटरेचर के बारे में बात नहीं मैं कहूँगा, वैसे लिटरेचर के मामले में मैंने इसीलिए कहा था कि सोशल साइंसेज में हमारी रिसर्च थोड़ी पछड़ी है, पर भाषा संकाय में हमारी लिटरेचर के फील्ड में हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं। मैंने जब ये कहा कि हमारी रिसर्च अप टू द मार्क नहीं है, तो मेरी वो सोशल साइंसेज के कॉन्टेक्स्ट में थी। भाषा के मामले में, लिटरेचर के मामले में हमारे यहाँ अच्छा काम हो रहा है, और ऐसा काम हो रहा है जो जिनका कंपैरिजन हम वेस्ट से या उनसे भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं इस बारे में। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। पर हाँ, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस की बात की, तो अगर कोई आदमी आज की डेट में पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा काम करता है, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जहाँ पे उसको जॉब मिल जाएगी। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, कोई 40-50 हजार की उसको जॉब तो मिल ही जाएगी बेटा। Thank you. जी, बहुत शुक्रिया सर। I want to invite Papi Haldar ji, and Papi Haldar is from the Bangladesh. She want to say something. Namaste, sir. Very good morning to sir and also all the research scholars. Sir, truly it was a very good session and very informative and knowledgeable information we got. Especially I got motivated from your speech. And I want to thank this research association because, sir, I am from Bangladesh, and 3 months have passed since I joined this group, and I am very happy. I'm very happy, and I get motivated because for such wonderful session, if every month they try to arrange this program. And sir, one question I want to ask to you. Sir, actually, I am learning Hindi. I am not good at Hindi. Just I can understand Hindi. Sir, sometimes we research scholars want to give effort, but the problem is that we don't know the way how we can publish paper in a Scopus indexed journal. That is our problem sometimes. We know that is as a student from Bangladesh, actually, sir, I am here under the Indian government scholarship. So obviously I want to create something new that may impact on the society of the India as well as Bangladesh. So the problem I am struggling here, that means sometimes I don't know the way. How can I? Papi ji, Yes, you are most welcome. I'm really happy that now this association is not an Indian Research Scholars Association. It is supposed to be called International Research Students Association now. So congratulations to the organizers that we are having students from the Bangladesh and are from neighboring country also. So as far as the Papi's question is concerned, that's a very valid question. Papi, what I used to tell my students is really very important. When a research student joins me, I used to tell him that you are going to work on this field because I am working on India, Central Asia. So I used to tell him that go to the library. Today, these days, we have a digital library mainly. And I used to tell him that make a list of 20 experts, which are best experts of your field.
whatever the area you are working, you are supposed to make the list of 20 experts who are the best people who are writing the, who are on the top as far as the research on that particular field is concerned. And then I used to tell them that make a list of 20 journals of your area, the journals which is publishing your papers of your area. So then I will tell them to study those papers only for 6 months. Suppose there are two journals, Indian Journal of which subject you are from, Papi? Commerce Sir, I am from commerce background, sir. Commerce. Yes, sir. Actually, sir, I want to work on finance. Finance. Okay. So there are some very good journals of finance. So you have to identify those papers which are the best papers on finance. Journals. When I'm saying papers, journals. So regularly study those journals, their content, their papers, and you will have a very good idea within few months. What I used to tell my students in the first 6 months, I used to give them 2 research papers. Initially, I used to give them 1 paper, and a student is supposed to study that paper, and in the evening, he or she is supposed to give me the feedback of the paper in a single paragraph or on a 1 page. And later on, I used to give them 2 papers a day. And once student has gone through more than 100 papers, he or she is used to develop a very good understanding of the structure of the paper, about the content of the paper, ideal content of the paper. And then I used to tell them, now go and write down a paper. So as far as as you have pointed out that you are not able to identify the papers, journals where you can publish your papers, so there is nothing to worry. There are 2 ways. One, which I have already told you, to identify the best journals. The second one is Scopus is a very good tool, beta. You just you write down your paper and upload your abstract to this Scopus, and Scopus will itself advise you that these are the journals where you can publish your paper. So you need not to worry about the searching about that which journal I am going to take. You just do one thing. You just ask Scopus. Scopus will help you. In case I think Vikas will be able to help you in that. He will provide you my email ID and all that. I will send my email ID to Vikas. So just pin me. I will send you the link how to locate the best journal for your paper. I will help it out better. Thank you so much, sir. Okay. Any participant want to ask the question to sir? If anyone want to ask, you can ask it directly. Otherwise, we will begin the session. Anyone want to ask? Yes, Aswini ji. नमस्ते सर, नमस्कार सर। मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं अमरनाथ विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हूँ। सर जैसे उन्होंने वही हमारे मित्र ने आपसे डिस्कस किया। फिर सर जैसे आपने बताया कि आप जब भी कोई स्कॉलर आपके पास आता है तो आप एक पैरामीटर देते हैं कि आपका पेपर पब्लिश होना चाहिए, एटलीस्ट स्कोपस में क्लियर है कम हो तो कोई कमेंट कुछ करता नहीं। ऐसे पीएचडी का स्कोप है वो कम होता है। कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपका एक पैरामीटर फिक्स किया कि रिसर्च एकदम ठीक ठाक पब्लिश अच्छी जगह होना चाहिए, वो नैतिक एक डर भी कम होता है रिसर्च स्कॉलर के अंदर। इसके लिए और धन्यवाद आपने जो बताया कि आपका रिसर्च चलाना पड़े कि पैरामीटर है कि एटलीस्ट आप रिसर्च करें और
हमारे साथ बहुत ध्यान लगा। हम लोग हैं कि विकास जी, मुझे ना थोड़ा आवाज में समझ नहीं आया, अश्विनी भाई जी ने क्या जी जी थोड़ा आप क्लियर करें। अश्विनी जी, आप वीडियो क्लोज करके आप क्वेश्चन पूछे, शायद आपका नेटवर्क इशू है, तो थोड़ा सा क्लियर हो सकेगा सर। आई थिंक he's asking about the parameters of the Scopus publication and some like this. अश्विनी जी? हाँ, नहीं उसमें तो जी उसमें अगर अश्विनी जी आप स्कोपस के पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई बड़ा पैरामीटर नहीं है। उसमें उनका सबसे बड़ा पैरामीटर तो एक ही है जिसमें सब चीजें कवर हो जाती हैं, वो है कि आपकी जो रिसर्च है वो पूरी तरह ओरिजिनल होनी चाहिए, ओरिजिनल रिसर्च होनी चाहिए। और अगर आपकी रिसर्च ओरिजिनल नहीं है तो स्कोपस वाले ज्यादातर पेपर आपकी रिसर्च को नहीं पब्लिश करेंगे। अगर आपकी रिसर्च ओरिजिनल है तो वो पब्लिश करेंगे। और उसमें एक और चीज में दिक्कत होती है कि जिस फील्ड के ऊपर आप उनके पिछले 2-3 इशू जरूर देखिए जिसको आप भेजने जा रहे हैं। एक ही फील्ड के ऊपर स्कोपस के जो अच्छे जर्नल होते हैं वो 1 साल में पेपर रिपीट नहीं करेंगे कभी भी। मान लीजिए मैं डेमोक्रेसी के ऊपर किसी जर्नल ने इस अंक में पेपर छापा है तो 1 साल तक वो इंडियन डेमोक्रेसी पे कोशिश ये होगी कि नहीं छापेगा। जहाँ ये भी होता है बहुत सारे जर्नल के साथ, जो अच्छे जर्नल होते हैं वो 2 साल में एक राइटर का एक ही पेपर, एक ही ऑथर का पेपर दोबारा नहीं छापते। लैंग्वेज का बेटा होता है। मैं अब आपसे जब ये सेशन शुरू हुआ मेरी से थोड़ी गलतफहमी हो गई। मुझे ये लगा ये सेशन 11 बजे है, वो सेशन 10 बजे था। मुझे पता नहीं, मुझे अब मेरे मन में 11 बजे का ही था। तो मैं बच्चों से, मेरे साथ भी एक विद्यार्थी बैठे थे, मैं उनसे पेपर पे ही बात हो रही थी हमारी। मेरे एक स्टूडेंट थे मेरे साथ बैठे थे। उसने जो मुझे पेपर दिखाया उसने एक वर्ड लिखा कि जी इंडिया हैज अडॉप्टेड अ वेरी अग्रेसिव अप्रोच। अब जैसे ये वर्ड अग्रेसिव है तो अग्रेसिव वर्ड नहीं आ सकता। आप ये कहेंगे कि इंडिया हैज अडॉप्टेड अ प्रोएक्टिव अप्रोच। अभी ये जैसे अभी एग्जांपल याद आई। तो आपको अपने वर्ड्स को लेके बेटा बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा, अपने शब्दों को लेके। दूसरी बात ये है, आप कहीं पे भी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देंगे। अगर आप बहुत सारी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं तो फिर वो अवॉइड करते हैं। और आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते। आप किसी को टेररिस्ट नेशन ही अनाउंस कर दें कि है ना जी, या किसी को ऐसा भी अगर आप करेंगे तो देन यू आर, अगर हाँ आप ऐसा कर सकते हैं फिर उसके लिए आपको बहुत सॉलिड सबूत भी पेश करने पड़ेंगे, फैक्ट भी पेश करने पड़ेंगे कि वाई आई एम कॉलिंग इट ये एंड वो। सो बेटा उनका सबसे बड़ा यार्ड स्टिक जो होता है वो तो ओरिजिनलिटी ऑफ द रिसर्च होता है। ओरिजिनलिटी ऑफ द रिसर्च कहाँ से आएगा? SLR से आएगा। बिना SLR के जितनी रिसर्च वर्ल्ड में आज की डेट में हो रही है, बिना SLR के आपकी रिसर्च में ओरिजिनलिटी नहीं आ सकती। और बिना SLR के कभी कोई पेपर स्कोपस नहीं छापता, चाहे जो भी हो जाए। इफ आपने SLR नहीं किया स्कोपस में, बहुत कम चांस है आपका पेपर छपेगा बेटा, बहुत ही कम चांस है। अश्विनी जी, मैंने आपके क्वेश्चन को एड्रेस किया या अभी भी कुछ और था आपका क्वेश्चन? प्लीज लेट मी नो। यस सर, थैंक यू सर। Okay, so Ankita Shukla, you want to ask something? Okay, now we will take only one question. Yes, Ankita ji. अंकिता जी प्लीज अंकिता जी आपका माइक ऑफ है, अनम्यूट करिए। सादर प्रणाम सर। नमस्कार जी भाई, नमस्कार। I am Ankita Shukla. Basically, I am from Varanasi, and I had done my till masters from Banaras Hindu University. For the curiosity reason, I just newly enrolled in the Central University of Kerala in the research program. Basically, I am from education department, and my background is also education. So
अभी मैं 2 महीने हुए सिर्फ इनरोल्ड हुए, तो मेरे जो मन में है, मेरे जो दिमाग में है, वो बेसिकली ये है कि मुझे किस एरिया में काम करना चाहिए। लाइक ऐसा इमर्जिंग या ट्रेंड्स एरिया जो आगे आने वाले 4-5 साल तक जिस पे काम करे तो उसका रिजल्ट्स इफेक्टिव आए, या फिर लाइक ऐसा जो हमें फ्यूचर में या सोसाइटी को हेल्प करने वाला है। तो इससे रिलेटेड अभी मेरे दिमाग में जो थोड़ा प्रश्न है, तो मैं चाहती हूँ आप उसको मुझे थोड़ा सा गाइडलाइंस दें। देखिए, इसमें अंकिता जी, पहले तो बनारस के सब लोग मेरे लिए पूजनीय हैं। मेरे अपने मन में बनारस के लिए बड़ी रिस्पेक्ट है। ये बहुत ही पुण्य भूमि है बनारस के, तो मतलब अपना तो नमन है बनारस को। मुझे कभी भी मौका मिले बनारस आने का, मैं छोड़ता नहीं हूँ, पर मौके कम मिलते हैं। एनीवे, फिर बेटा, जो आपने बात कही ना कि आप देखिए, मुझे एजुकेशन के जो फील्ड्स हैं उनका एग्जैक्टली मैं उन फील्ड्स की बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस फील्ड से नहीं हूँ। पर जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, मैं आपसे यही एडवाइस करूंगा कि आप उसके ऊपर जाके जो बेस्ट जर्नल्स हैं, मान लीजिए आप स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन पे बात करना चाहते हैं, काम करना है ना जी, तो जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जर्नल्स हैं बेस्ट 2-4, आप स्कोपस में जाएंगे तो आप उसमें आपको रेटिंग मिल जाती है, आपको पता लग जाता है कि कौन सा बेस्ट जर्नल है स्पेशल एजुकेशन के ऊपर। आप उनमें देखिए जाके, वही मैं फिर कहूंगा कि आप सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करेंगे जब वहां जाके, तब आपको गैप तो बना बनाया मिल जाएगा बेटा, बना बनाया गैप मिल। स्कोपस की ब्यूटी ही ये है बेटा, हमारे समय में नेट नहीं, गूगल नहीं, स्कोपस नहीं हुआ करता था, तो हमें तो लाइब्रेरीज में धक्के खा के काम करना पड़ता था। आज की डेट में किसी टॉपिक स्कोपस से एक एसएलआर करने को ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे में कर देता है। मैक्सिमम आधा पौना घंटा लेता है एसएलआर के लिए एक स्कोपस। तो किसी ऐसे दोस्त को पकड़िए जिसके, आपको तो केरला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपके पास तो अभी स्कोपस की सब कुछ होगा नहीं, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बहुत सारे साथी बैठे हैं। मुझे आशा है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वालों के पास तो सब्सक्रिप्शन होगी ही होगी सबके पास स्कोपस की, तो उनसे लेके आप एसएलआर करिए। एसएलआर करके आपको गैप तो बेटा बना बनाया मिलेगा कि ये दीज आर द फील्ड जिनके ऊपर काम नहीं हुआ है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्कोपस। यही एक खास बात है जो हमें, मतलब हम जैसे लोगों को तो पूरी तरह स्कोपस के ऊपर डिपेंडेंट बना देती है बेटा। आप उसमें जाएंगे, आप अपने टीचर से बात करेंगे, वो भी आपको हेल्प करेंगे इस बारे में, तो उसमें तो बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा आपको बेटा। बहुत बहुत आभार गुरुजी। साक्षी जी, साक्षी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप म्यूट है भैया। मैं हेमंत जी को बुलाऊंगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए। हेमंत जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी। सबसे पहले मैं तो आदरणीय प्रोफेसर जगमीत बाबा सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने सोशल रिसर्च इट्स रिलेवेंस फॉर द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पे हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे आज के समय में शोध होने चाहिए और सोसाइटी को शोध जो हम कर रहे हैं कैसे सोसाइटी को मतलब लाभ पहुंचाएं। और विभिन्न जो हमारी क्वेरी थी हमारे शोधार्थी साथियों को, उन्होंने सर ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेरी शांत की लोगों की। और कोऑर्डिनेटर विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो ये प्रोग्राम आयोजित कराए। कन्वीनर धीरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रोग्राम कराने में सहयोग प्रदान किया। साथ ही संचालिका साक्षी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का संचालन किया। और हमारे प्रिय शोधार्थी साथी जो उन्होंने बहुत ही धैर्य पूर्वक शांति बना के बहुत ही पेशेंसफुली इस कार्यक्रम को सुना और अपनी क्वेरी शांत की। और हम उम्मीद करते हैं कि सर का आशीर्वाद हमें भी समय समय पर भी मिलता रहेगा। कभी भी कोई भी और भी अन्य टॉपिक तो विकास जी और ये हमारा एसोसिएशन अगर में आयोजित कराता है प्रोग्राम तो सर का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। सो मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस सर्टिफिकेट के लिए जो हमारे एसोसिएशन की मेल है उस पर केवल नाम लिख के सेंड कर दें
और जो अभी अंकिता जी ने प्रश्न उठाया था, तो सर मैं इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि स्कोपस का सब्सक्रिप्शन हम जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हैं स्कॉलर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बॉडी में, तो वो अगर मेल करते हैं किसी पार्टिकुलर रिसर्च पेपर का टाइटल के नाम के साथ कि हमने ये रिसर्च पेपर हमें चाहिए और हमें नहीं मिल रहा है, तो हम उनके मेल पर वो 2 से 4 दिन में जब जैसे ही हमें अवेलेबल होता है किसी से हम ले करके उनको सेंड करते हैं। तो जिस भी स्कॉलर्स को अगर ऐसी परेशानी है तो टाइटल के साथ कि ये टाइटल है रिसर्च पेपर का, वो हमें चाहिए, तो अगर सेंड करते हैं तो हम उनका रिप्लाई करते हैं। सो सर आपके पर आदेश से हम लोग इस सेशन को एंड कर सकते हैं सर अब? ओके, थैंक हाँ यू जरूर सर। सर, जरूर। ओके, प्रणाम सर। थैंक यू वेरी, प्रणाम सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। प्रणाम सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू धीरेश जी, थैंक यू भाई थैंक विनय यू। कुमार उपाध्याय जी, बहुत देर तक जुड़े रहे आप। आकांक्षा जी, मनीषा मानसवी जी, सागर जी, करवार जी, थैंक यू जोगेंद्र जी, थैंक यू। आप तो बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं भाई। इसमें सदैव जुड़ते हैं, मैं देखता रहता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सभी को, धन्यवाद धन्यवाद।